चुनौतियाँ हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका ध्यान रखना है। इस ब्राह्मण जीवन को हो सकता है जो सामान्य तौर पर बाहर में जो लोग रहते हैं उनके सामने वैसी परिस्थितियां नहीं आती हो, हमारे सामने उससे भी बढ़ के परिस्थितियां आ जाए, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण जीवन हमारा अमूल्य है। कैसी भी परिस्थितियां हो, हमको बाबा का हाथ और साथ पकड़ के चलते रहना है। बाबा नैया पार करने वाला हमारे साथ है, इसलिए फिक्र की क्या बात है। And it's only if my stage of soul consciousness is very firm and very strong by taking Baba's power that all sanskars will not emerge, because at any given time I need my level of energy within the soul, and if that energy is reducing and if I have to face situation with karmic account or whatever intensity and influence, then my old sanskars may emerge and then I may give sorrow. तो इसलिए हमें बाबा का साथ पकड़ के रखना है। हम सब के अंदर पुराने संस्कार हैं। अगर कोई भी परिस्थिति में हम बाबा से शांति शक्ति नहीं ले रहे हैं, अटेंशन हमारे पर खुद पर नहीं है, तो क्या होगा, पुराना संस्कार हमारे पर इमर्ज हो जाएगा और फिर गलत काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। But at some point, I have to reach in my practice of being soul conscious to be more natural being soul conscious and not so much natural in my body conscious. Up to now we have been very natural in being body conscious, so all the sanskar connected to it are very present, and that is why I have to practice soul consciousness up to the point I master it, and I'm easy, I take benefit, I enjoy it, it's my normal way to express myself. Then I will enjoy my effort on soul consciousness, and then it will not be considered no more as an effort. As long as I consider soul consciousness, to make my stage of soul consciousness as an effort, it means something is missing in my understanding what it is, and on to have creating the natural sanskars of it. So it means that I have to refine something more, I have to understand something more, I have to create something more, so that now I feel I'm okay with my stage of soul consciousness, and I lead my life with that, and I use my stage of soul consciousness at any moment for everything, with all situations, all type of souls, and it's just natural. My mind, my intellect, my attitude, my consciousness work on soul consciousness. हमारा जो पुरुषार्थ है वो क्या है, सोल कॉन्शियस बनने का, आत्माभिमानी बनने का। पहला पाठ और अंतिम पाठ यही है। तो अगर अभी भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है आत्माभिमानी बनने के में, तो इसका अर्थ है कि कुछ न कुछ कमी है हमारे पुरुषार्थ में, हमारी समझ में। तो उस कमी को हम दूर करें और हमेशा सोल कॉन्शियस रहें, आत्मिक स्थिति में रहें। तो कैसी भी परिस्थिति होगी, कोई भी बात होगी, हम अपनी स्थिति से उस पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। ब्राह्मण जीवन का जो आनंद है, जीवन मुक्ति का जो अनुभव है, अभी करना है। सतयुग में तो करेंगे ही, लेकिन बाबा क्या बोले, बहुत समय का जो आपका अभ्यास रहेगा वो वहां पर, अगर भी थोड़ा समय यहाँ सोल कॉन्शियस रहेंगे तो वहां भी थोड़ा समय का आपको जीवन मुक्ति करना है। इसलिए बहुत समय का, जितना समय का आप यहाँ सोल कॉन्शियस स्थिति में रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो बहुत समय का राज्य भाग वहां भी आपको प्राप्त होगा। And that is why everything that Baba is telling us, teaching us about some aspect about soul consciousness, let me really take it at least in priority so that I can use it. And because he will teach, he will give knowledge about what is the soul and the nature of the soul, so I know I have to be peaceful and so on and so forth. Whatever the values and virtue which are connected to the nature of the soul, let me express it in my life. Whatever the drill, because Baba is teaching many drill and method of soul consciousness, let me use it and practice it.
Let me see everyone as a soul and let me understand what are the sanskars, the karma of each and every soul. No, as much I'm using the knowledge, the practice, the drill, the values and virtue of what is connected with the soul, as much my soul conscious sanskars are emerging, and then I become more and more easy and natural in my stage of soul consciousness. Then I enjoy my stage of soul consciousness. I enjoy my Brahmin life, and I understand much better Baba's Murli as well. हम सबको बाबा के द्वारा भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती हैं आत्माभिमानी बनने के लिए, और जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो आत्मा के गुण हमें अनुभव होते हैं। आत्मा के गुण सबको याद है, क्या क्या है? ये हमारे से सबको अनुभव हो, जहाँ भी हम बैठे हों, जहाँ भी हम हो, तो शांति, प्रेम, आनंद, खुशी सबको अनुभव हो। उसका हम अनुभव करेंगे तभी दूसरे को अनुभव होगा। फिर बाबा हमें ड्रिल कराते हैं, 5 स्वरूप का भी ड्रिल है, सोल कॉन्शियस का भी ड्रिल है, तो वो सब ड्रिल का भी हम प्रैक्टिस करते रहे। और ये सब करते करते जब हमारी सोल कॉन्शियस अवस्था हो जाती है तो हमारे बाबा की जो मुरली है वो भी हमें समझ में आने लगता है। कभी होता है कि मुरली सोल से लाके तक चला गया, कुछ हमारे पास रुका, बाकी सब चला गया ऊपर से। तो इसलिए जब हम सोल कॉन्शियस अवस्था का विभिन्न तरीके से अनुभव करेंगे, जो आत्मा के गुण है वो हमारे द्वारा सबको अनुभव हो, और भी जो भी शक्ति है आत्माभिमानी बनने से गुण आपके अंदर और विकसित होंगे, तो आप ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे। और बाबा से भी, क्योंकि जितना हम आत्माभिमानी रहेंगे बाबा से हम जुड़े रहेंगे। The mind and the intellect work according to the consciousness. If I'm body conscious, my mind and intellect will work in a gross way, in a way towards the material world. If I'm soul conscious, then my mind and intellect will be much more subtle, being able to understand things correctly, and I will be able to catch whatever signal from Baba, whatever is happening, whatever people's thought, you know. So everything will change, you know, when I think and reflect on soul consciousness. So that is why, before starting to think and act, let me say, oh no, how should I think and use my intellect in the stage of soul consciousness? जब हम देह अभिमान में रहते हैं तो हमारी जो मन बुद्धि है उस अनुसार कार्य करती है, और जब हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो हमारी मन बुद्धि उस अनुसार कार्य करती है। तो इसलिए जब भी कोई बात हो, परिस्थिति हो, तो हम सोल कॉन्शियस हो करके बाबा की याद से हम उस कार्य को करें। और हर कार्य करने के पहले स्वयं से ये पूछना चाहिए कि मैं सोल कॉन्शियस स्थिति में हूँ, मुझे इस वक्त क्या सोचना चाहिए, क्या मुझे इस वक्त करना चाहिए, ये हर कार्य करने से पहले अपने से पूछें। So the thing is, once we are Brahmin, it means that God has chosen, selected these Brahmin souls. And if the soul is still Brahmin today, it means that soul is making some effort, he has some speciality. So I should not take it as granted that this one is a Brahmin, but I should tell myself which type of effort that soul is making, and how he is leading, practicing his life of soul consciousness, what is his special talent or value. Because if you think like that, like any Brahmin which I'm seeing is a special, so it means I may learn something from him. Then it changes your vision, because as soon as you can learn something from someone, then you will
naturally respect that soul, no matter the defect or the difference or the karmic account. So it changes your attitude completely and your consciousness towards the other Brahmin if you are able to learn something about soul consciousness from the other one. हम सब ब्राह्मण हैं और इतनी आत्माएं आज हमारे सामने हैं, सब ज्ञान में चल रहे हैं। तो हमें क्या देखना चाहिए कि ये आत्मा जो ज्ञान में चल रही है, इसके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है। आज कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, 50 साल से, जितने साल से भी चल रहे हैं, तो उनके अंदर कोई न कोई पुरुषार्थ है, कोई न कोई विशेषता है जो ये आत्मा आज भी बाबा का हाथ पकड़े हुई है। तो हमें क्या करना है, सोल कॉन्शियस होके उस आत्मा की उस विशेषता को देखना। फिर क्या होगा, कोई भी कर्म बंधन होगा, हिसाब किताब होगा, तो भी हम टकराव में नहीं आएंगे। हम सोल कॉन्शियस होके उस आत्मा की विशेषता को देखेंगे, तो उसका भी हम रेस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, और हमारा प्रेम सद्भाव बना रहेगा। And still the chance that we get is that we did have all the daddies and dada, the senior sister and brother. So it's always good to observe them with to ask yourself what the, I mean we don't even need to observe their achievement. It's so obvious, you know. They have such a natural quality, power when they express themselves. But it should inspire each one of us to say, with that effort of being soul conscious, I can achieve this and this and that. So, but also to understand that they make effort for it, and we know that each of us Brahmin souls, you know, we have our preferred daddy or dada, but we should also accept all of them and to learn from all of them, so that I can become more complete myself. दीदी दादियों को देखते हैं, दादा लोगों को देखते हैं, तो हर एक ने पुरुषार्थ किया है अपना सोल कॉन्शियस स्टेज का, और वो उनके बातों में देखने में, जीवन में हमें मिलता है। तो हर एक दीदी दादी दादा लोगों को देख करके हम भी पुरुषार्थ करें। जो आत्मा की जो गुण है, प्रेम, शांति, आनंद, वो सब हमें दादियों में देखने को मिलता है। तो हम भी उसी तरह से उनके गुणों को, विशेषताओं को देखें और हम भी पुरुषार्थ करके अपने में गुण धारण करें। And that is why, I mean, it's easy for the daddies and the dada to ask ourselves what is the speciality of each one of them. But as I create the sanskar to see the speciality in them, I should create the sanskar to see that speciality for each and every Brahmin souls. और जो दीदी दादियों में हम जैसे संस्कार उनका देख के स्वयं में धारण करते हैं, उसी तरह से हमें क्या करना है, हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर भी विशेषताएं देखनी है, गुणों को देखना है, और जो श्रेष्ठ है वो हम स्वयं में धारण करना है। Because it is this which will create unity, harmony, power in the Brahmin family, and which will make the Brahmin family, the yagya, successful. And and that is what the way to reveal God to the world, by having that unity and harmony within our Brahmin family, and by seeing the speciality to each other. Karmic account will vanish very quickly as well. So then, and we need that as well. तो इसलिए हम सब बाबा को यज्ञ को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, तो हम सब का जो कर्म बंधन है एक दूसरे के साथ, वो समाप्त होगा। कैसे? जब हम एक दूसरे की विशेषताओं को देखेंगे, उनका रेस्पेक्ट करेंगे, तो जो हमारा टकराव है संस्कारों का वो समाप्त हो जाएगा, और हम सब एकता में, सद्भावना में रहेंगे और विश्व के आगे प्रत्यक्ष होंगे। And today was amazing the Moli. Oh, Baba gives so much importance to Brahma Baba. और आज की मुरली में हम सब ने देखे कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कितना महत्व दिया। You know, only if Brahma Baba said, this child is okay, this child give only happiness and doesn't give sorrow, only if Brahma Baba says so, then Baba will accept that soul in his heart, you know. So I can see that for me,
if Baba gives so much importance, it means Shiv Baba has selected Brahma, knowing that that soul is really such a precious soul, and the humility and egoless stage of God is that, okay, if Brahma Baba is okay with you, then I will be okay with you, myself. तो हम लोग क्या देखे आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कैसे महत्व बताया कि ब्रह्मा बाबा जिस आत्मा के लिए बोलेंगे कि ये आत्मा सबको सुख देती है, ये आत्मा अच्छी है, तो बाबा उस आत्मा को अपने दिल में जगा देंगे। कितनी बड़ी बात है। शिव बाबा उसको दिल में रखेंगे जिसको ब्रह्मा बाबा अप्रूव करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा कितनी स्पेशल सोल है, कितनी महान आत्मा है। और बाबा क्या बोलते हैं, बाबा मुरलियों में क्या बोलते हैं, आज तो ब्रह्मा बाबा नहीं है, तो कैसे आपको जगह मिलेगा शिव बाबा के दिल में, कैसे मिलेगा बताइए, कोई आदमी हाथ उठा के। जो ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ेंगे तो वही ना, ब्रह्मा बाबा जब कहेंगे कि ये आत्मा अच्छी है, ये सबको सुख देती है, तब आपको शिव बाबा के दिल में जगह मिलेगा। आज तो ब्रह्मा बाबा है नहीं, तो आपको फिर कैसे शिव बाबा के दिल में, तो ठीक है, लेकिन आपको दिल में जगह कैसे मिलेगी। ब्रह्मा बाबा जब साकार में तब बता देते कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो शिव बाबा के दिल में जगह मिला। ब्रह्मा बाबा है नहीं। हाँ? दादी हाँ, तो नाम बताइए, कौन सी दादी के पास आपको दादी को जानती भी नहीं होगी, कौन सी दादी के पास आप जाएंगे जो आपको कहेंगे कि हाँ संजय भाई जो भी निमित्त टीचर हैं वो टीचर अप्रूव करें। हाँ, अब ये भाई जी ने सही बात बताया कि जो आपके सामने निमित्त आपकी दीदी है वो आपको अप्रूव करेंगी, वो कहेंगी कि हाँ फलाना भाई सबको सुख देते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, तब आपको शिव बाबा के दिल में जगह मिल जाएगी। ठीक है, सब लोग अपना लाइन क्लियर रखिए। है, आज की डेट में जो आपकी निमित्त दीदी है वही ब्रह्मा बाबा के जगह पर बैठी है। ठीक है, बाबा तो टीचर है, लेकिन उनके जो छोटे टीचर, इसको बाबा नया टीचर बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी होता है, हेडक्वार्टर उसका दिल्ली बॉम्बे में, लेकिन उसका ऑथोराइज होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो उस कंपनी का वो प्रतिनिधि है, तो वो जो कहेगा वो उसका Shiv Baba, because he makes so much effort to make us happy, and we'll be happy for 21 births, and he knows by doing that we will totally forget him. I mean, so it means that he doesn't do anything for himself, he doesn't get anything from us, he does everything for us, and that is what we can really trust Shiv Baba, because he never had any the slightest desires for him, from something coming from us, taking something from us. So that creates really the faith and the belief that I can trust this being, and whatever he's telling me, I know it will be very good for me, and I can have total confidence about it. शिव बाबा क्या है, बेहद के हैं, प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, सुख के सागर है, और हमें वो हमेशा सुख शांति प्रेम आनंद देने वाले। हमसे उनको कुछ नहीं चाहिए, बाबा को हमारे से कोई स्वार्थ नहीं है, उनका जो प्यार है वो निस्वार्थ प्यार है। इसीलिए हम बाबा पर पूरा भरोसा रख करके पुरुषार्थ करें, आगे बढ़े, बाबा से प्रेम करें, समाये रहें, बाबा के प्यार में समाये रहें। And just to finish, it's now we have to understand that for me anyway, the soul has the eight natural quality of the soul, which is the eight quality of Shiv Baba, because Baba is the father, and my inheritance is to get all the quality of God. So the eight quality of God as the ocean is peace, love, power, purity, happiness, mercy, light, and I guess I have all of them. So all these eight quality is what the soul has within himself, and now we have to be full in these eight quality. हम सबको बाबा का वसा लेना है, क्या करना है, बाबा के जितने गुण हैं, 8 गुण मुख्य हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, क्षमा के सागर है, आनंद के सागर है,
पवित्रता के सागर। तो वो 8 गुण हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर समा जाए 24 घंटा। So it's a good sign to check myself how much I have imbibed this all 8 quality in my daily life, and I have to be 100. If I have 100% in this 8 quality, then it's like Baba said, Sri Krishna will rule the kingdom only when he will be able to give the order to the kingdom. But to be able to give the order in the kingdom, it means you have totally imbibed Srimad within yourself, all God's quality. So unless I have imbibed really deeply inside, then I can speak about it. And as I speak from my own experience, people will accept, recognize, respect, follow, and then the kingdom will be organized naturally. So by keeping this in mind, I know that the only way to become a king is to have to imbibe totally. Otherwise, no matter how much I want, I will not become that. तो श्री कृष्ण सतयुग के महाराजा बने तो कैसे बने? जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बने। माना बाबा के जितने गुण हैं सभी गुणों को जब स्वयं में धारण किए, तब उनके द्वारा सभी को शांति, सुख, आनंद, प्रेम सारे विश्व को मिला। और जब सारे विश्व को सुख शांति उनके द्वारा मिल रहा है, सर्वगुण संपन्न बने हैं, तब उनको सभी विश्व महाराजन मान रहे हैं। तो इसीलिए हम भी इस बात का ध्यान रखें कि हम भी अपने अंदर सर्वगुणों को धारण करें, तभी हम सतयुग में राजा रानी बनेंगे। So by keeping the aim to become a king, I will make my effort to imbibe all Baba Srimad. Om Shanti. तो ऐसा बनना है, सच्ची राजा रानी बनना है, तो बाबा की जितनी सेवा है बहुत बहुत धन्यवाद मिशेल भाई का। आप सभी ने देखा इनके जीवन में ज्ञान की कितनी गहराई, बाबा की एक श्रीमत कि हमें आत्माभिमानी बनना है, उस पर कितना इनका गहराई से चिंतन है। और सिर्फ चिंतन ही नहीं है, बल्कि आत्माभिमानी स्थिति का कितना गहरा अनुभव है इनके जीवन में, जो प्रत्यक्ष आपने इनकी वाणी से भी सुना और आप इनकी स्थिति भी देख रहे हैं। तो जो आत्मा उस स्टेज को हासिल कर लेती है, जिसको बाबा कहता है आत्माभिमानी स्टेज, वो हमेशा खुशी के झूले में झूलती रहेगी। इसलिए मिशेल भाई हमेशा खुशी के झूले में झूलते रहते। They are always happy. Yeah, well, I make some effort. I mean, I take things in a light way, be easy in everything. That's also. मिशेल भाई कह रहे हैं कि मैं हर चीज को बहुत लाइटली लेता हूँ और इसलिए मैं सदा खुश रहता हूँ। Yeah, I should not be disturbed by anything, anyone. Yeah, I should not be disturbed by anything, anyone. कभी भी ये डिस्टर्ब नहीं होते हैं, न किसी परिस्थिति से, न किसी व्यक्ति से। तो ये भी एक पुरुषार्थ है, इसके लिए इन्होंने पुरुषार्थ किया है। So power of tolerance, accommodation, understanding, being detached, help a lot. बाबा कहते हैं ना, जो विभिन्न शक्तियां हैं, चाहे समाने की शक्ति है, चाहे सहन शक्ति है, ये जितनी शक्तियां हैं, जितना हम इसको अपने अंदर भरते हैं और इन्होंने अपने अंदर भरा है, तो ऑटोमेटिकली हर स्थिति में एक रस रहना इनके लिए बहुत आसान हो गया। ये लंबे समय का इनका अभ्यास है, जिस अभ्यास से इनकी स्थिति बिल्कुल डिटैच हो चुकी है। And Baba has given us a very good mantra, which I like and practice as much as possible. And this mantra is, it is like that. Don't try to think that situation Brahma should be another way. Take it as it is, and according as it is, try to adjust, find a way, swim into the drama as it is. बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इन्होंने बाबा का एक मंत्र पूरा कर लिया है कि जो बात जैसी है हमारे सामने वो वैसी ही रहेगी,
अब हमको रास्ता निकालना है कि उसको हमको क्रॉस कैसे करना है। हम ये सोचेंगे ये ठीक हो जाए, वो बदल जाए, बातें इस रूप में नहीं इस रूप में हो जाए, तो ये प्रयास जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे। हम स्वीकार लेंगे कि हाँ ये चीज ऐसी ही रहेगी, अब हमको कैसे चलना है, हमको कैसे सदा खुश रहना है। जब ये रास्ता हम निकालना शुरू कर देंगे तो फिर परिस्थिति से हमारी स्थिति डगमग नहीं होगी। और ये मंत्र इन्होंने बाबा का पक्का कर लिया, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हमको कैसे चलना है ये हमें रास्ता निकालना है। हम भी देखते हैं परिवर्तन का, जब हम अंदर से